Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are fit and fine and doing your homework daily. So, today in third standard we are going to start our new lesson in English subject. So, everyone please take your English textbook with you. We are going to start our new lesson number 6. Trains. TRAINS. Train. आप सभी ने देखी होगी ट्रेन. You can see in this picture there is a train. Have you traveled on a train? Read and enjoy this poem. First of all, we are read our poem. After it, we will go with our story. So, there is a title of the poem, Train. 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 ट्रैवल किया है कभी आपने ट्रेन में? इट्स इंजॉयबल. बहुत ही मज़ा आता है ट्रेन में घूमने का, है ना? क्या क्या देखने को मिलता है? What we can see? Mountain, river, trees, village, city. So many things we can see whenever we sit in the train. So let's start our poem. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Mountain. MOUNTAIN. You know what is the mountain? Its synonyms is hill. Okay. Then river. You know what is a river? Plane, train. Passengers. Passenger means जो ट्रेन में बैठते हैं वो लोग क्या होते हैं? पैसेंजर्स. Then mail. यानी किसी का हमें कोई सामान देना है, कोई चीज़ जिसके घर पहुंचानी है तो वो ट्रेन में भी जाता है ना, वो सामान, मेल, किसी की चिट्ठी. तो ये सब ले जाने में ट्रेन जो है वो कभी भी फेल नहीं होती. वो क्या करती है? माउंटेन के ऊपर से जाती है, रिवर के ऊपर से जाती है, फिर ट्रेन आती है, पैसेंजर को बिठाती है, मेल ले जाती है, उनका कीमती सामान भी ले जाती है. ये सब ले जाने में वो कभी भी फेल नहीं होती. देन रोड पे आपने देखा होगा बहुत सारी कार जाती है, दिन और डार्क, डे एंड डार्कनेस यानी डे और नाइट, डस्क एंड डॉन. ओवर द माउंटेन. सारी जगह ट्रेन कभी भी थकती नहीं है, वो अपना काम करती रहती है. सो लेट्स रीड अगेन. ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स. Carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. So, this poem is very short but interesting. I hope आपको मज़ा आया होगा. चलो अब हम न्यू वर्ड्स देखते हैं. माउंटेन. MOUNTAIN. माउंटेन एंड इस प्लूरल वाली माउंटेन्स. पीछे हम क्या लगाएंगे? एस. उसी तरह से पैसेंजर. PASSENGER. और उसको हमें प्लूरल करना होगा तो हम क्या ऐड करेंगे? वी विल ऐड एस. पैसेंजर्स. आफ्टर इट रिवर्स. इट्स ऑल्सो प्लूरल. इसका सिंगुलर क्या होगा? रिवर. ओके. देन मेल. MAIL. मेल. वन इज मिसिंग. प्रीक्यस. PRECIOUS. देन प्लेन्स. आफ्टर इट डस्क. DUSK. डस्क. एंड देन dawn. DAWN.
Okay, so students, now take your notebook and on new page write down today's date and day. After it, unit 6 poem Trains. Then you have to write this poem in your notebook. After it, you have to write these new words in your notebook. Write down this, then we will go with the question answer of the poem. ओके, और आप लिखो तब स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, शांति से गुड हैंड राइटिंग में विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक लिखना, ठीक है। सो राइट डाउन क्विकली। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोम। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द ट्रेन्स रन? वेयर do the trains run? Answer is the trains run over the mountains, plains and rivers. The trains run over the mountains, plains and rivers. Question number 2 is what are the precious loads that they carry? They carry important papers, luggage and gold, silver, etc. which are very precious. Means जो ट्रेन है वो कौन सा, लॉड मीन्स सामान और प्रीकियस मीन्स कीमती, ऐसा कौन सा कीमती सामान है वो लेके जाती है। तो कौन से कीमती सामान हो सकते हैं? कोई इम्पोर्टेंट पेपर, कोई लगेज, गोल्ड, सिल्वर, ऐसा कुछ भी वो लेके जा सकती है। सो दे कैरी इम्पोर्टेंट पेपर्स, luggage and gold, silver etc. which are very precious. Then third number, when do the trains run? When do the trains run? Answer is the trains run after carrying passengers, mails and precious loads. The trains run after carrying passengers, mails and precious loads. Then what is dusk and dawn? Dusk means the darker stage of twilight and dawn means break of day. Okay, dusk the darker stage of twilight and dawn means break of day. Then do you enjoy train rides? Yes, I enjoy train rides very much. If you had to travel over a long distance, how would you like to go and why? So, if you had to travel over a long distance means अगर आपको कहीं लंबी जगह पे जाना है, दूर जाना है, तो आप कैसे जाओगे, किससे जाओगे और क्यों? हम किस किस से जा सकते हैं? बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन। रोड पे हम कार, व्हीकल, बस इन सब से जा सकते हैं। एयर के हम प्लेन में बैठ के भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो आप किससे जाना पसंद करोगे? सो आंसर इज आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन। दिस इज बिकॉज इट इज़ अ कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. It has sleeping arrangements and toilet facilities that are essential for traveling over a long distance. हम ट्रेन से जाना क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबल रहता है, सोने के लिए भी जगह मिल जाती है, वॉशरूम की भी फैसिलिटी मिलती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए खूब ज़रूरी है. सो आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन. दिस इज़ बिकॉज इट इज़ अ कंफर्टेबल मीन्स ऑफ it is a comfortable. It has sleeping arrangements and toilet facilities so that are traveling over a long distance. Then if you had to spend the night in a train, what would you need to take with you? Draw means अगर आपको रात को ट्रेन में सफ़र करना पड़े तो आपको क्या चाहिए पड़ेगा? And name the things you would need in this
सूटकेस, और आपके सूटकेस में आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए वो आपको ड्रॉ करना है और उसको लिखना है। अब सबसे पहले तो हम ट्रेन में बैठेंगे तो हमें फूड चाहिए, तो देखो फूड FOOD फूड। उसके बाद हमारे सूटकेस में क्या होगा, बेड शीट, सोने के लिए हमें बेड शीट चाहिए ना, BEDSHEET बेड शीट। देन पिलो PILLOW। देन टूथब्रश, रात को सोएंगे उसके पहले हम टूथब्रश करेंगे ना, टूथब्रश TOOTHBRUSH। टूथपेस्ट TOOTHPASTE। टंग क्लीनर TONGUECLEANER टंग क्लीनर। यानी हमें ये सारी चीज़ चाहिए अगर हम रात को ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो। देन डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक। राइट 4 सेंटेंस अबाउट योर जर्नी। यू कैन यूज सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। मैनी पीपल, क्रॉड टी स्टॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ हिंट दिए हुए हैं, क्लू दिए हुए हैं, यू कैन यूज टू मेक द सेंटेंस। जैसे कि आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर टू गो अ हिल स्टेशन। माई फादर टुक द टिकट्स फ्रॉम द टिकट विंडो। फ्रॉम द विंडो आई सॉ हिल्स, बिग एंड स्मॉल ट्रीज एंड रिवर। I also saw crowd at tea stalls and many people on the station. The train whistled loudly if someone comes in between the tracks. अब देखो हम स्टेशन पे जाएंगे, हमें ट्रेन कहाँ से मिलेगी, घर पे लेने तो आएगी नहीं। स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से हम पहले टिकट खरीदेंगे, उसके बाद हम ट्रेन में बैठेंगे और अगर हमें विंडो सीट मिली तो हम बहुत सारी हिल्स, ट्री, रिवर ये सब देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेशन पे जो टी स्टॉल होते हैं वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, स्टेशन पे भी बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। और ट्रेन जहाँ पे चलती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक। वहाँ पे अगर कोई होता है तो जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो क्या करता है, लाउडली विसल बजाता है ना, ताकि वो हट जाए। सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर टू गो अ हिल स्टेशन। माई फादर टुक द टिकट्स फ्रॉम द टिकट विंडो। फ्रॉम द विंडो आई सो हिल्स, बिग एंड स्मॉल ट्रीज। आई ऑल्सो सो crowd, tea stalls and many people on the station. The trains whistled loudly if someone comes in between the tracks. Okay? Then number 9, sort out these different means of transport in correct groups. Land, air, water. यानी जो लैंड पे ज़मीन पे चलते हैं उसको लैंड में लिखना है, जो हवा में उड़ते हैं उसको हवा में लिखना है, जो वाटर पे होते हैं वो वाटर में लिखना है। लैंड तो क्या होगा, बस, कार, ट्रेन, बाइसिकल, ट्रक। एयर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। एंड वाटर, शिप, बोट, स्टीमर, याच। ओके, देन कंप्लीट this sentence. Give me some blank to eat. Food. FOOD food. Play with me and swim across the river. Let's go on the train. Say aloud, male, fail, dawn, on, planes, trains. Okay? So these are our question answer of the poem. You have to write in your notebook and also learn it. Okay students, in next lecture we will go with our story of unit 6. Okay, so do your homework daily, stay home, stay safe and be happy. Have a nice day.